ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ آئیے ہمارا اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی محفل میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی محبت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور علماء، شعراء اور سادات کرام کو ہم نے بلایا، ان کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور انوار و تجلیات کی بارشیں جو ہو رہی ہیں اسے ہم سمیٹتے جا رہے ہیں۔ آیت کردہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بارہا اس آیت کریمہ کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کرب و بلا کے واقعات آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی مقرر، کوئی محقق یا جتنی بھی اپنے آپ کو دانشمند سمجھے، علم کے کمال کو پہنچ جائے، کما حقہ اہل بیت کرام کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ
اہل بیت کرام کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، تو ہم اور آپ اگر ان کے فضائل کو کما حقہ بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ بس فضیلت کی کچھ باتیں ہیں جو آپ بارہا سنے ہیں، کچھ باتیں ہم سے بھی سنیں تاکہ ہمارا بھی نام اہل بیت کے سراخانوں میں آ جائے۔ بس مقصد صرف یہی ہے، اور آپ بھی کچھ سنیں اور دل جمی کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میری بات حسین کی بات ہے، حسین کی بات میری بات ہے، میرا قول حسین کا قول، حسین کا قول میرا قول ہے، میرا گوشت حسین کا گوشت ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ گویا ایک ہی جملے میں آقا نے فرما دیا کہ تمام فضیلتیں جو ہیں، اس لیے کہ امام الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی عظمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب آپ کی عظمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو امام حسین کی عظمت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میرا کردار حسین کا کردار ہے، حسین کا کردار میرا کردار ہے۔ اب اگر کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری عظمت جا رہی ہے۔ وہ جو تلوار چلا رہے ہیں وہ امام علی مقام پر نہیں بلکہ امام الانبیاء پر تلوار چلا رہے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام نے آپ کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، اور جیسے صحابہ کرام میں جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں انہوں نے آپ کی عظمت کا ڈنکا بجایا ہے۔ بس یہی باتیں آپ کو سنانا ہے۔ آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ یہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا، کس انداز سے ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کا بیٹا یزید تخت نشی ہو جاتا ہے، اور تخت نشی ہو جانے کے بعد جبرن تخت نشی ہوا، اور وہاں سے خط لکھا کہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کے تم بیعت لے لو میرے نام کی۔ ایک امام حسین ہے، ایک عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، ان کی بیعت لے لو۔ اور ولید کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کہا اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا کرو۔ اب جو ہے بلایا گیا، امام علی مقام جب تشریف لاتے ہیں، یہ جو 3 صحابہ اور ہیں وہ مکہ شریف ہجرت کر جاتے ہیں کہ وہاں جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا اور دارالخلافت میں آپ جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ کا استقبال ہوا، اور پھر کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ کی بیعت جو ہے لی جائے، اور یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، آج تک جو ہے خلافت کو عاملیت میں جگہ نہیں دی جائے گی،
आमतुल मुस्लिमीन जिसे तस्लीम कर ले, जिसे खलीफा मान ले वही खलीफा होगा। और इस तरह के गसब करने वाले के हाथ पर हम कैसे बैत कर सकते हैं? हरगिज़ बैत नहीं कर सकते। और फिर मामला यहीं तक नहीं है, यजीद के ताल्लुक से हमें खबर मिली है कि वो बेनमाजी भी है, वो शराबी भी है, वो जानी भी है, वो जो है शरीयत की पासदारी नहीं कर सकता है, तो हरगिज़ हम उनके हाथ पर बैत नहीं कर सकते। शरीयत को तबीयत में बदलने की नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। दीन हमारे घर से फैला है, दीन हमारे घर से फैला है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। इमाम आली मकाम जो है वहां से निकलते हैं और जो है मरवान वहां था, उसने कहा अभी वक्त है, इन पर काबू पाया जा सकता है, अगर यहाँ से निकल गए तो फिर काबू पाना मुश्किल है। इतने में इमाम हुसैन की आवाज सुनते हैं, आप पलट आते हैं और कहते हैं कौन है जो हमसे मुकाबला करे? आप तलवार निकालते हैं, लेकिन मुकाबले की वहां गुंजाइश नहीं है। कहते हैं आप तशरीफ ले आए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब घर में आते हैं, आने के बाद अपने जो है घर वालों से मशवरा करते हैं कि अब मदीना शरीफ के हालात वो नहीं है जो पहले थे। मदीना शरीफ के हालात बिगड़ चुके हैं और हालात ये हैं कि अगर यहाँ रहा जाए तो वो दिन दूर नहीं कि मदीना के गलियों में खून की होलियां खेली जाएंगी, यहाँ जो है नालियों में खून जो है बहाए जाएंगे और मदीनतुर रसूल की बेहुरमती होगी। इमाम हुसैन अपनी जान तो कटवा सकता है, अपने जान की कुर्बानी तो दे सकता है, लेकिन मदीना की बेहुरमती हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों को कहते हैं तुम लोग तैयारी करो और यहाँ से रुखसत होंगे, यहाँ से सफर करेंगे। इमाम आली मकाम ये हुक्म दे करके आप जो है जन्नतुल बकी की तरफ चले जाते हैं, जन्नतुल बकी की तरफ चले जाते हैं। तमाम लोग जो है आ जाते हैं। आने के बाद अब देखें, जबकि तमाम मदीना वाले को जब खबर पहुंचती है तो सब लोग आकर कहते हैं हुजूर आप चले जाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा, हम किनकी ज़ियारत किया करेंगे? आपको देखते हैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का जो है मजा हमें मिल जाता है। आप ना जाएं, लेकिन कहते हैं नहीं हमें जाना होगा, कुछ मजबूरियां हैं, हमें जाना ही होगा। आखिरकार अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म देते हैं और जो है रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले जाते हैं और जाने के बाद अपने मां के मजार पर जाते हैं। जाने के बाद आप बाहें फैला करके कब्र अनवर में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र मुबारक पर गिर जाते हैं और सवाल करने लगते हैं, ए अम्मा हुजूर आप जो है किसी सवाली का सवाल रद्द नहीं किए हैं, आज तेरा हुसैन सवाली बन करके आया है, आज ज़ियारत का सवाल करता है, आप जो है हमारे सवाल को पूरा कर दें। हजरत इमाम हुसैन जो है ये तमाम सवाल कर रहे हैं कि आप किसी सवाली का सवाल को रद्द नहीं किया है, आप भूखे रह करके दूसरे को खाना खिलाया है, आपके पास कुछ नहीं था, उस वक्त भी आपने तमाम सवालियों की हाजत रवाई की है। आज हुसैन आपके दरबार में आ गया है, हुसैन आपके दरबार में पहुंच चुका है, अम्मा हुजूर आपसे दीदार का सवाल कर रहा है, एक मर्तबा मुझे जो है ज़ियारत नसीब करवा दीजिए, मुझे अलविदाई सलाम कहने की इजाजत दीजिए और मुझे मदीना शरीफ से रुखसत कीजिए। अब जो है ये तमाम आहो फवा की बातें हैं, इमाम हुसैन के दिल से जो है आह निकलती जा रही है और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र में राशा तारी हो जाता है, लर्जा तारी हो जाता है, आवाज आती है बेटे ऐसे सवाल ना किया करो, माँ के दिल पर छुरियां ना चलाया करो, इसलिए कि अगर मैं इस तरह यहाँ से बाहर आ जाऊंगी तो अभी क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी, ये जमीन आसमान टूट पड़ेंगे, इसलिए जो है तुम्हें ये तमाम चीजों सब्र करना होगा और मैं अगर तुम्हारा सलाम कबूल न करूंगी तो किसका सलाम कबूल करूंगी? तुम तो हमारे दिल के टुकड़े हो, तुम हमारे आंखों के तारे हो, तुम्हारा सलाम कबूल नहीं करूंगी तो किसका कबूल करूंगी? तुम जाओ और मैदान करबला में
तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है, वहाँ हम भी आएंगे, तुम्हारे अब्बा हुजूर भी आएंगे, तुम्हारे भाई भी आएंगे, तुम्हारे नाना हुजूर भी आएंगे और वहाँ तुम्हारा इम्तिहान देखेंगे। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे पर्चे जो है बड़े अच्छे अंदाज से होने चाहिए। इमाम हुसैन तुम्हें सब्र जो है सब्र करना होगा और जितने जुल्म व जफा के तीर चलते रहेंगे उन तमाम तीरों को जो है तुम्हें अपने सीने पर लेना है और सब्र करते हुए गुजर जाना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास हजरत इमाम हुसैन सवाल करते हैं। आखिरकार जब आवाज आती है वहां से सलाम करके हजरत फातिमा कहती है कि अपने नाना हुजूर के मजार पर भी जाओ, अपने मामू जान के मजार पर भी जाओ। और हजरत इमाम हुसैन वहां अलविदाई सलाम कहने के बाद आगे बढ़ते हैं। आप अंदाजा करो कितना जो है पुरबलाल वक्त होगा, हजरत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वहां से उठते हैं और उम्महातुल मोमिनीन के कब्रों की ज़ियारत करते हैं, वहां जो है उनके मज़ारों की ज़ियारत करते हैं, नन्हे मामू जान के कब्र अनवर की ज़ियारत करते हैं और वहां से फिर नाना के मज़ार पर आ जाते हैं। और आने के बाद जो है बाहें फैलाकर कब्र अनवर पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं नाना हुजूर मेरा सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन आज आपकी बारगाह में सवाली बन करके आया है। मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जो है आप बेकरार हो जाया करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जिनके लिए आप खुतबा तर्क कर दिया करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जो जब मैं कांधे पर सवार हुआ था तब एक आवाज आई थी कि हुसैन तुम्हारे लिए कितनी अच्छी सवारी है, तो आपने जवाब दिया था ये नहीं देखते हो कि सवार कितना अच्छा है। वही हुसैन आपकी बारगाह में आया है। आज मुझे सिर्फ बारियाबी नसीब हो जाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये तमाम सवालात हो रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं कि मैदान करबला में जब नन्हा अली असगर कटता मेरे बाहों में कट करके सामने रह जाए, जब अली अकबर का लाशा तड़प रहा हो, जब कासिम की जवानी लूटी जा रहे हो, जब अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे जा रहे हो, उस वक्त हमें सब्र अता फरमाना, उस पर इस्तिकामत अता फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर नवासे जो है ये तमाम चीजें बयान कर रहे हैं और आका तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ये फरियाद करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, उस बारगाह से कोई जो है खाली हाथ नहीं लौटता है। आखिरकार हजरत इमाम आली मकाम के आंखों में जो है आंखों में नींद का गलबा आता है, आप लेट जाते हैं। इतने में क्या देखते हैं, इमामुल अंबिया सरकारी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर है और इमाम हुसैन के सरे मुबारक को अपने जानुए मुबारक पर रखते हैं और हाथों से कंधा करते हैं। आप अंदाजा करो इमाम हुसैन के सरे मुबारक का जो है कंधा कर रहे हैं और कहते हैं हुसैन ऐसी बातें ना किया करो, तुम्हें तो जिब्हे अजीम का जो है ताज पहनना है और तमाम जो है शोहदा के अजीम सिपा सालार बनना है। तुम अगर ये करोगे तो कैसे मामला चलेगा। और मैदान करबला में तुम्हारे सर से जो खून निकलेंगे, तुम्हारे गले से जो खून निकलेंगे, वो हकीकत में तेरा खून नहीं होगा बल्कि मेरा खून होगा। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अब जो है जियारत नसीब हो रही है, वह दुहा चेहरे की जियारत हो रही है, वल्लैल जुल्फों को बगौर देखा जा रहा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे मैदान करबला का नक्शा जो है सामने ला करके इमाम हुसैन का रख दिया और कहा यहाँ देख लो ये अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, यहाँ हजरत अली असगर के जो है हुल्कूम पर तीर मारा जाएगा, यहाँ जो है हजरत कासिम की जवानी लूटी जाएगी, ये वो जगह है जहाँ हजरत अली अकबर को जो है ज़बह किया जाएगा। ये देख लो ये तुम्हारे साथी जो है यहाँ इनको ज़बह किया जाएगा। लेकिन ए हुसैन तुम्हें सब्र करना है, इस्तिकामत दिखाना है, यही तो तेरा इम्तिहान है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम करबला का नक्शा दिखा दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है ये जो राहत भरी नींद थी कुछ देर के लिए थी। इतने में इमाम अंबिया कहते हैं बेटा उठो और
बातिल के हर ताकत से टकरा जाओ, इसलिए कि मेरी शरीयत को तुम्हें तबीयत में बदलने नहीं देना है। इमाम आली मकाम को सब्र की तलकीन करते हुए इमामुल अंबिया उठते हैं। इतने में जो है ख्वाब से जब बेदार होते हैं तो वही भोर सन्नाटा था, वहां से अलविदाई सलाम करते हैं अपने नाना के हुजूर। सलाम पेश करने के बाद जब आते हैं घर में तो वहां भी एक समा बधा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी जो है वो बीमार सोगरा है, बहुत शिद्दत की बुखार लगी हुई थी और हालात ये थे कि सोगरा जो है नकाहत की बुनियाद पर गश खा करके गिर जा रही थी। और जब तैयारी हो रही थी तो वो पूछती है कि आप लोग तैयारी करके कहाँ जाने वाले हैं, हमें भी साथ लिया जाए, हमें क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है। वो सोगरा है कि आहो की लड़ियां मची हुई है, वो आहो फगा कर रही है, लेकिन उनका जवाब देने वाले कौन है। हजरत ज़ैनब पाक अगर उनको पूछते हैं तसल्ली देने के अल्फाज कहते हैं तो उन्हें से लिपट करके जो है हजरत सोगरा जो है आहो फगा कर रही है। इमाम आली मकाम आ जाते हैं, देखते हैं बेटी के ये हालात हैं, बड़ी परेशान हो जाते हैं। काफी देर देखने के बाद फिर हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बेटी तुम्हें सब्र करना होगा, तुम्हें नकाहत आ गई है, तुम्हें बुखार हो गया है, इस हालात में तुम्हें जो है सफर करना नहीं है, तुम यही रहो, जब अच्छी हो जाओगे तो देखा जाएगा, अभी तो तुम्हें मदीना में रहना है। अब इमाम हुसैन कहते हैं कि हुसैन तुम्हारा इम्तिहान यहीं से शुरू हो चुका है, तुम्हारा इम्तिहान करबला से पहले यहीं से शुरू हो चुका है। आप अंदाजा करो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है, इस अंदाज से आहो फुगा कर रहे हैं। आप औलाद वाले हैं, जरा अंदाजा करो आपकी बेटी अगर कोई चीज की जिद कर ले तो जब तक वो नहीं दिलाते हैं तब तक आपको सुकून नहीं होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपकी बेटी जो है अगर जिद कर ले तो वो जिद को पूरा करते हैं, लेकिन वो तो इमामुल अंबिया के नवासे की बेटी है। आप अंदाजा करो उनका मकाम और मर्तबा कैसा ऊंचा होगा, उनकी अजमत का क्या हाल होगा, लेकिन उसे जो है वही रहना है। अब इमामुल अंबिया सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रफ्ते सफर बांध रहे हैं, रात की तारीकी है, रात के सन्नाटे में इमामुल अंबिया सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़ रहे हैं और मक्का की तरफ हिजरत कर रहे हैं। आप अंदाजा करो एक वादे के लिए मदीना को छोड़ रहे हैं। इमामुल अंबिया के नवासे जब अपने रफ्ते सफर को बांधते हैं तो आपको तारीख याद होगा कि जब इमामुल अंबिया मक्का से हिजरत किए थे तो रात का वक्त था और इमाम हुसैन जिसका सब कुछ मदीना में है वो हिजरत कर रहे हैं तो भी रात का वक्त है। एक मदीना में आ रहे हैं तो वहां से हिजरत करके रात का वक्त है और एक मदीना को बचाने के लिए, मदीना की हुर्मत को बचाने के लिए, मदीना की आज़मत को बचाने के लिए जो हिजरत कर रहे हैं वो भी रात का वक्त है। इमामुल अंबिया के नवासे इमाम आली मकाम जो है वहां से रुखसत होते हैं। अब जो है मदीना छोड़ने की चीज नहीं है। आप जानते हैं जो हुज्जाजे किराम है जो हज करके आए हैं उनसे पूछिए मदीना को छोड़ना आसान नहीं है। मदीना छोड़ते हुए दिन निकल जाता है, जान निकल जाती है। इमाम हुसैन मदीना को छोड़ रहे हैं, आसान काम नहीं है, लेकिन बताना यह है इमाम हुसैन का सब कुछ मदीना में है। इमाम हुसैन के नाना मदीना में है, इमाम हुसैन की माँ मदीना में है, इमाम हुसैन के भाई मदीना में है, इमाम हुसैन का बचपना मदीना में है, इमाम हुसैन की जवानी मदीना में है। तमाम गलियां जो है वो इमाम हुसैन की है, वो शाहजादे हैं मदीना तैयबा के। आप अंदाजा करो वो मदीना छोड़ रहे होंगे तो उनकी दिल की कैफियत क्या होगी, उनके दिल का हाल क्या होगा, उनकी तो जान निकल रही होगी। इसलिए कि मदीना छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मदीना की हुर्मत बचाने के लिए इमाम आली मकाम वहां से रखते सफर बांधते हैं और जब चले जाते हैं और सनियातुल वदाई में जब पहुंचते हैं जहां तक लोग जो है जाकर के उन्हें जो है अलविदा कहा करते थे, लेकिन आज इमाम हुसैन को अलविदा कहने वाला भी कोई नहीं है। इमाम हुसैन को अलविदा कहने वाला नहीं है और बार बार मदीना शरीफ को मुड़ करके देख रहे हैं, गुंबद खजरा की तरफ आंखें उठा उठा करके देख रहे हैं और देखते क्या है, एक नूर की कतार है। अब ये पता नहीं चल रहा है वो नूर आसमान से नुज़ूल हो रहा है या जमीन से आसमान की तरफ जा रहा है, ये
یہ پتہ نہیں چل رہا ہے امام حسین اس کو چھوڑ رہے ہیں 70,000 فرشتے مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہیں اور یکے بعد گرے ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن امام حسین آگے بڑھے جا رہے ہیں، اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو گھوڑا اور اونٹ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایسا انداز لگ رہا ہے گویا بڑھ نہیں رہا ہے، پیچھے ہی ہٹ رہا ہے۔ آپ اندازہ کرو جب آپ بھی گھر سے نکلتے ہو اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم جب بڑھتے ہیں تو لگتا ہے بڑھ نہیں رہے ہیں، وہی کہ وہی ہے۔ جانور بھی جان رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس لیے کہ نواسے رسول کا قدم پڑ گیا تھا تو جو ہے جانور بھی جان رہا تھا امام علی مقام امام حسین کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ جانور بڑھ رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے جو ہے آگے بڑھتے چلے گئے، کچھ دیر میں مدینہ شریف جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ اندازہ کرو امام حسین مدینہ کس لیے چھوڑے تھے؟ دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، مدینہ جو ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کے عظمت و فضائل کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو یہاں سے دور لے جا کر کے جو ہے ہجرت کر رہے ہیں اور مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔ بتانا یہ ہے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ گوشے اپنے ذہن میں بھی رکھنا چاہیے اور ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں تو کام بنے، اس لیے کہ اگر امام حسین کی پوری زندگی ان کو ہم اپنے آپ میں ڈال لیں یعنی نمونے عمل بنا لیں تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو امام حسین کی محبت میں جلائے، سلائے اور اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔